لاہور ہائی کورٹ بار کے انتخابات کے سلسلے میں سالانہ ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ نواز رانجھا اور حافظ انصر شعیب لا ایسوسی ایٹس کی جانب سے ظہرانے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں عابد ساکی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اسد منظور بٹ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اسد منظور بٹ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، مظہر اقبال سندھو، احمد نواز رانجھا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور دیگر وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وکلاء کا کہنا تھا کہ یہ کریج پیدا اپنے اندر کی کہ وہ اپنے بڑوں کے سامنے سوال رکھ سکے اور ان کو ذمہ داری کا احساس دلا سکے۔ میں اپنے تمام ایشوز جو ہمارے بار میں موجود ہیں میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں، حقائق سے ہم ہٹ کے بات کرتے ہیں اسپیچز میں۔ میں مالٹون سیٹ سے ریپیٹ کا الیکشن لڑ رہا ہوں۔ پچھلے سال 53 ووٹوں سے میں الیکشن لوز کیا، تو میری مدد فرمائیں۔ میں انتہائی مشکور ہوں احمد نواز رانجھا صاحب کا، حافظ انصر شعیب صاحب کا اور اپنے تمام سینئر کا جتنے یہاں پہ موجود ہیں، اور معزز ممبران لاہور بار کا جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے جوائنٹ سیکرٹری کے لیے امیدوار اپنا نامزد کیا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے عزت دی تو آپ کا مان رکھوں گا اور وکلاء کی ویلفیئر کے لیے کام کروں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ پہ کلندر نہیں گرتے، ٹوٹے بھی جو تارے زمین پر نہیں گرتے، گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں، گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں، کبھی کوئی سمندر دریا میں نہیں گرتے۔ جو کرنا ہو سرمارکہ زست تو سن لو، جو کرنا ہو سرمارکہ زست تو سن لو، بن بازوے حیدر در حیبر نہیں گرتے۔ اور میرے بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اتنے پروفیشنل لوگوں نے مجھے اناؤنس کیا۔ جب میں آئی تو مجھے فخر محسوس ہو رہا تھا۔ یہ جو دیوار اندھیروں نے اٹھا رکھی ہے، یہ جو دیوار اندھیروں نے اٹھا رکھی ہے، میرا مقصد اسی دیوار میں در کرنا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں میرے بڑوں کی، احمد نواز رانجھا صاحب کی، انصر شعیب صاحب کی، جواد کی، یہاں جتنے یہاں میرے بڑے بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، میرے کولیگز ہیں، میرے پیئرز ہیں، میرے چھوٹے ویر ہیں، میں سب کی بہت شکر گزار ہوں۔ تو یہ سب ایسوسیٹس اس آفس کے یہ اور اس لیے یہ سب لکی ہیں کہ ان کو ایک اچھے استاد ملے، اچھے سینئرز ملے۔ تو آج میں خود کو لکی فیل کر رہا ہوں کہ میں ان کا کینڈیڈیٹ ہوں۔ 11 ووٹوں سے الیکشن لوز کر دیا تھا، دوبارہ کنٹیسٹ کر رہا ہوں۔ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ میرا مزید ساتھ دیجیے، اور بالخصوص انصر بھائی آپ کا اور ہمارے سینئر نواز رانجھا صاحب اور تمام آپ کے جو ایسوسیٹس ہیں جنہوں نے لاسٹ ایئر بھی ہم سے جو ہے وہ خود تعاون اور محبت کا اظہار کیا تھا۔ میں سیکرٹری لاہور بار کا الیکشن ریپیٹ کر رہا ہوں۔ لاسٹ ایئر چند ووٹوں سے لوز کر گیا تھا۔ میری آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ میں ایک ورکر ہوں، آپ میں سے رہنے والا ہوں، ہر وقت آپ میں موجود ہوتا ہوں اور انشاءاللہ ہر دو صورت میں آپ میں ہی رہوں گا۔ میں آپ سب حاضرین کا انتہائی مشکور ہوں کہ احمد نواز رانجھا صاحب نے اس محفل میں شاہ صاحب کا ذکر کیا اور ان کے لیے دعائیں خیر کروائی، اور کل بھی جج صاحب تشریف لائے تھے اور ہم بہت دیر مرحوم شاہ صاحب کا ذکر کرتے رہے۔ آپ لوگ تو ان کو لیگل فریٹرنٹی کے لوگ ہیں، جانتے ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ کا حکم اور ایک بڑا ہمارے لیے بھی ثانیہ ہے۔ منتظمین ظہرانہ کا دل کی عطا گہرائیوں سے مشکور ہوں جنہوں نے میری ذات پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے اس عزت افزائی کے قابل سمجھا۔ میں اس سال نائب صدر کی سیٹ پہ لاہور بار میں امیدوار ہوں، اور میری ون لائنر ٹیگ لائن الیکشن کا جو منشور ہے وہ یہ ہے کہ نو کمپرومائز آن دا ریسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی آف لائرز۔ میں اس حوالے میں because time is very short and I won't take your much time, but I would like to tell you about انصر شعیب حجرا صاحب، because انہوں نے تو یہاں پر سب کے بارے میں بتا دیا، اور میرے اندر ایک وہ there is a word in پنجابی کھوٹ تھی پئی سی۔ I was also willing to tell about انصر شعیب حجرا صاحب کہ he is a very very kind hearted, very respectable personality۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں رسپیکٹیبل احمد نواز رانجھا صاحب کا اور حافظ انصر شعیب صاحب اور ان کے تمام ایسوسیٹس کا کہ انہوں نے ہمیشہ بہترین اور انڈیپینڈنٹ فیصلے کیے ہیں، اور ان کے تمام ایسوسیٹس اور انتہائی میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں فرداً کہ انہوں نے دوسری دفعہ میرے پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے اس سلیکشن پر
कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि आपने गलत सिलेक्शन किया इंशाल्लाह। तो हमें पता होता है कि हमें एक लॉन्ग सफरिंग की तरफ जाना है, लॉन्ग स्टैंडिंग सफरिंग्स, उन चीज़ों से गुजर के हमने आगे चीज़ों को लेके चलना है। उसके लिए क्या चाहिए हमें? एक टेबल चाहिए, एक कुर्सी चाहिए और एक फाइल चाहिए। अब बार रूम में बैठकर हम ये तो बहुत कहते हैं कि हमारे जिस तरह सीनियर्स हैं वो ये कर रहे हैं। अब अगर पूछना है तो मेरा ख्याल है हमारे रोल मॉडल भी बैठे हैं, हालांकि साकी साहब से रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स हम हमेशा इनके कदरदान रहे हैं, वो भी इन्हीं से सीखा है कि अपनी पॉलिटिक्स भी करें तो स्टैंड लेना है आपने। कि जब भी किसी ताले आज़मा ने इस बार को या इस मुल्क की तकदीर के साथ खेलने की कोशिश की तो इस बार में आहनी हाथों से उसका रास्ता रोका। न कभी कंप्रोमाइज जिंदगी गुजारी है और ना इंशाअल्लाह अजीज कंप्रोमाइज जिंदगी गुजारेंगे। मैं समझता हूँ कि हाफिज अंसर शुएब और अहमद नवाज रांझा साहब ने जो रवायत डाली है इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। देखिए बाहर के प्रोग्राम होते हैं तो उसका एक तासुर बनता है। जब आज यहाँ लीगल एथिक्स की बात करते हैं तो ये भी एक तासुर में इजाफा है कि वकला के बारे में जो मनफी बातें फैलाई जाती हैं वो बातें ऐसी नहीं है, बल्कि सीनियर लोग इस चीज़ की तबलीग कर रहे हैं अपने नए आने वाले दोस्तों को कि अगर अल्लाह ताला आपको इख्तियार दे तो आपने बार के नाम को रोशन करना है एथिक्स के जरिए, अपनी प्रोफेशन के जरिए और अपनी खिदमत के जरिए। मैं लास्ट ईयर भी कंटेस्ट किया लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए, चंद वोटों से लूज किया है। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। गैर मुमकिन नहीं। अंसर शुएब साहब ने मेरे बारे में जो कहा है मैं यकीनन उसका अहल नहीं समझता अपने आप को, लेकिन उनकी मोहब्बत का जो गुदाज है और उनके अंदर की जो रोशनी है उसके लिए मैं उनके लफ्ज़ों का शायद मेरे पास मुनासिब अदा करने के लिए मेरे पास ज़ख़ीरा अल्फाज नहीं है। मैं आपका छोटा भाई सुहेब फरमान भट्टी, उम्मीदवार फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर बार के लिए। मैं अंसर शुएब रांझा साहब लॉ एसोसिएट का शुक्रगुजार हूँ कि जो इत्मीनान उन्होंने हमसे किया, हमें अपना उम्मीदवार नामजद किया। इन इज्जतों में हम मखरूज रहेंगे इंशाल्लाह हमेशा। और अल्लाह पाक ने अगर मौका दिया तो कोशिश यही होगी कि जो मामलात बार में चल रहे हैं या जिसमें यंगस्टर्स को ब्लेम किया जाता है, एक छोटी सी बात सिर्फ इतनी सी कि 2 चीज़ों पे लड़ाई आजकल बार में चल रही है। कैंडिडेट साहबान हमारे पास आकर हमें पूछें, रिक्वेस्ट करें कि कोई दोस्त हमारे इन गैलेक्सी ऑफ गुड फ्रेंड्स में से, इस गैलेक्सी में से किसी सितारे के पास जाएं कि हमें आप वोट करें। क्यों ना हम सब एक दूसरे को जानते हैं, उनमें से जो हमें बेहतर लगते हैं हम उन दोस्तों को खुद बुलाकर उनकी इज्जत करें। इस वक्त तकरीब में हमारे नुमाइंदे एम ए रहमान मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी, आज की इस तकरीब में हमारे साथ बिल्कुल वकास सिंधु साहब जो यंग लायर्स हैं, आज इनसे बात करते हैं कि वो यंग लायर्स के हकूक़, उनकी फलाह बहबूद और बार के वक़ार के हवाले से वो क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे आप साहब ने बात की बार काउंसिल्स के हवाले से, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमारे जो सीनियर वकला हैं उनके ऊपर भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो जूनियर्स की फलाह बहबूद के लिए, उनको आगे लेके आने के लिए अपना किरदार अदा करें। और पूरी दुनिया में जहाँ पे जूनियर्स का एक अप्रेंटिसशिप सिस्टम चलता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर, उसको बरूए कार लाते हुए उस पर अमल दरामद किया जाए। ना सिर्फ उनकी माली मुआवनत की जाए बल्कि उनकी हौसला अफजाई की जाए। हमने अपॉइंटमेंट ऑफ यंग लायर्स के हवाले से जी, अपॉइंटमेंट ऑफ यंग लायर्स के हवाले से मेरा ये मौक़िफ़ ये है कि इसमें स्क्रूटनी सख्त से सख्त होनी चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंट लैट टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया, गैट इंट्रोड्यूस किया गया, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रोफेशन के हवाले से ही समझा जाता है कि जो कुछ नहीं कर सकता उसको ला के प्रोफेशन में भेज दिया जाए, जो कि गलत तासुर है। इसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स, आपका पैशन, आपका हार्डवर्क रिक्वायर होता है और ये ज़रूरी भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर टेस्ट और जो स्क्रूटनी है, जिस तरह डॉक्टरेट की डिग्री या इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए लोग स्क्रूटनाइज होकर आते हैं, लॉ के प्रोफेशन में भी वैसे ही आने चाहिए। और जो लोग फिर उस पे आएँ उनको अकोमोडेट भी करना सीनियर्स का प्लस बार काउंसिल्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको अकोमोडेट करें, उनकी फलाह बहबूद के लिए उनको एक रास्ता दिखाएं। आज नाज़रीन मकामी होटल में मौजूद हैं जहाँ पर
आज उम्मीदवार का पैनल अनाउंस किया गया है। बार के वकार, बार की अजमत और यंग लायर्स के रोशन मुस्तकबिल के लिए आया ये क्या किरदार अदा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफिज साहब, जो यंग लायर्स के मामलात को बड़ी ही बारीक बीनी से देखते हैं, उनसे बात करते हैं। वकार, मेयार और रोशन मुस्तकबिल के लिए यंग वकला के लिए इनका क्या प्लान ऑफ एक्शन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से आज हमारा सालाना ज़ोहराना था और तमाम वकला क़यादत यहाँ पर मौजूद थी, जो साबका थी और जो आने वाले वक्त में हम जिसका इंतखाब करेंगे वो भी मौजूद थे। और उसमें जो सबसे हमारा मेन इशू डिस्कस किया गया, ज़ेर बहस रहा, वो ये था कि जो हमारे नए वकला साहबान हैं जो इस शोबे से मुंसलिक होना चाहते हैं, उनके साथ कोई ऐसा एक्शन ऑफ प्लान दिया जाए जिसके तहत उनकी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त हो, उनके सीखने सिखाने का इल्म सिलसिला चलता रहे, और उसके साथ साथ जो हमारे लिटिगेंट है, जो इस सिस्टम का बेनिफिशरी है, जिसने फ़ायदा उठाना है, उसके लिए क्या ऐसी सहूलियात या चीज़ें मुहैया की जाएँ, और हमारा बेंच के साथ जो बार का रिश्ता है उनको किन खतूत पे इस्तवार किया जाए, उसके लिए आज की बैठक थी। और बड़ा खूबसूरत लोगों ने अपना मौक़िफ़ दिया और नाक़दीन ने उस पर तनकीद की, और उसके नतीजे में आज इस अज़्म के साथ कि इंशाअल्लाह हम ये काम बड़े बखूबी अंजाम देंगे। अच्छा सर, यंग वकला के ट्रांसपोर्ट के हवाले से और उनके वजीफ़े के हवाले से बहुत से मसाइल हैं फाइनेंशली। देखिए, इसमें बार काउंसिल्स मौजूद हैं हमारी, जहाँ पे हमारे फंड्स इकट्ठे होते हैं, और बार काउंसिल्स एक एक्ट के तहत मार्ज़ वजूद में आती हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारी हुकूमतें हैं, जो रियासती इदारे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि बार काउंसिल्स को फ़ंड्स मुहैया करें, और उन फ़ंड्स के नतीजे में बार जो हमारे बार एसोसिएशंस में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में बार एसोसिएशंस हैं, वहाँ पे फ़ंड्स दें, और एक उसका तरीक़ाकार जिसकी आज हमने ज़ेर बहस भी आया, उस तरीके के तहत जो यंग वकला हैं उनके सीखने का अमल हो, और उनके जो वजीफ़ा है, रोज़ानिया है, उसका अमल हो। उसके लिए इंशाअल्लाह आज ही ये मौजू ज़ेर बहस रहा है। शुक्रिया। आओ सर जी। बिल्कुल नाज़रीन, ये थे यंग वकला जो कि वकला की फलाह बहबूद के हवाले से बात करते हुए न्यूज़ 24 से मुतालबा कर रहे थे कि हुकूमत पंजाब को और बार को चाहिए कि यंग वकला के मसाइल अवलीन तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएँ। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।